السلام علیکم. آج سب کو میری طرف سے عید مبارک. میں ہوں محمد فرقان اور ہم موجود ہیں چھوٹا ٹاپو عیدگاہ میں. آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ عید کیسے منا رہے ہیں. تو آئیے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو اس پروقار موقع پہ دل کی گہرائی سے عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. شکریہ. تو آپ اس موقع پہ عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کے لیے کیا کہیں گے، جس طرح اس ماہ رمضان میں لوگوں نے اپنا دلی گہرائی سے پورے رمضان کو تراویح پڑھا، عبادت کی اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح سے ہر دن کرے اور دین کی طرف جائے، دین کو زیادہ سے زیادہ خیال رکھے. اچھا، آج کی عید اور بچپن کی عید میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا عید جو ہے، ہم لوگ جیسے پہلے بچپن میں آتے تھے تو پاپا ہی سب کے ساتھ آیا کرتے تھے، فیملی کے ساتھ آیا کرتے تھے. ابھی بھی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن تبھی یہ تھا ہم لوگ پاپا کے کچھ مارکیٹ سے خریدا ہوا سامان پانا کرتے تھے، ابھی خود سے خریدنا پڑتا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پھر سے عید مبارک. پروقار موقع پہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. شکریہ. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ عید کیسے منا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ سارے بچوں کے ساتھ احباب کے ساتھ عیدگاہ آنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ. اچھا، آج کی عید اور بچپن کی عید میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بچپن کی عید میں ایک بچپنا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے. آج کی عید میں کیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، دوست سب بکھر گئے ہیں اور یہ اتفاق ہوتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سارے لوگ عید کے دن ہم لوگ یکجا ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں. اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خاص کر کے ہمارے جو ٹاپو ایریا ہے سپول بہار، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس موقع پر؟ اس میں یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنائیں اور عالم اسلام میں ہندوستان کے بات پیش کرتے اور ہندوستان میں بھائی چارہ بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پھر سے آپ کو عید مبارک. آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. جی، آپ کو بھی، سب جو یہاں اپستھت ہیں سبھی لوگوں کو. تو یہ جو شخص موجود ہیں یہ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور ہمارے جو ٹاپو ایریا ہے سپول بہار، سپول کے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. میرا نام شمشیر عالم. اور آپ جو ہے اس پروقار موقع پہ خاص کر کے ٹاپو ایریا کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی روزہ کا سمے گزرا، آج عید ہے، جس طرح ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ عبادت میں جڑے رہے پورے رمضان کے بعد بھی ہم لوگوں کو اسی طرح سے اللہ کو یاد کرنی ہے. اور جتنا ہمارے اوپر بلا ہے دنیا میں چاروں طرف سے، یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہم لوگ اس کو اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں، تبھی ہمارا اوقار باقی رہے گا اور اس پر ہم لوگوں کو عمل کریں. چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پھر سے عید مبارک. آپ کو دل کی گہرائی سے عید مبارک. آپ کو بھی دلی جو ہے مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے علم سے نوازے اور آپ کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور اس عید کے موقع سے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو ناموری عطا، دنیا میں بھی ناموری اس عطا کرے. پروقار موقع پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بچپن کی عید ہوا کرتی تھی اور آج کی جو عید ہے اس میں آپ کو کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بچپن کے عید میں چونکہ اس جگہ بہت زیادہ ایک عالیشان مطلب کہ یہ عیدگاہ تھی، لیکن آج بھی زمانے کے اعتبار سے یہ بھی عیدگاہ جو ہے بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. وہاں مختلف گاؤں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. یہاں محدود گاؤں میں ہی اتنی آبادی ہوگی، کثیر آبادی ہے، جس کے چلتے ہم لوگ محدود ہو گئے. اس پروقار موقع پہ آپ کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں خاص کر کے ٹاپو کے لوگوں کے لیے؟ ٹاپو کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے مابین
एक इज्तिमाई क़ुव्वत अल्लाह ताला पैदा कर दे और दावती फिक्र जो है पैदा कर दे। चलिए शुक्रिया, आपको दिल की गहराई से ईद मुबारक। और इस पुरवकार मौके पर हम जानना चाहते हैं कि आप क्या खास पैगाम देना चाहते हैं हमारे टापू के एरिया के लोगों को। आज हमारे तमाम टापू वासियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो, सबकी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और इस ईद की खुशी के मौके पे मैं अपने गांव वालों को, अपने देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और आफियत का माहौल बना के रखें, भाईचारा बना के रखें और हमारी जो गंगा जमने तहजीब है उसको बना के रखें, ताकि हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गहवारा बने और जिस अजीम मकसद के लिए हम लोग उठे हैं वो अजीम मकसद को हम लोग पूरा कर सकें। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उलझेंगे, हमारे वतन के जो भाई हैं उनसे उलझेंगे, तो हमारा जो अजीम मकसद है जो हम करना चाहते हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो इस टापू इलाका है, आज से नहीं जब से हम बचपन से देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जो इत्तेहाद है, वो हमेशा बरकरार रहे और किसी तरह की कोई उस तरह की बातें नहीं हो जो हम दूसरे को सुनते रहते हैं, ताकि ये इलाका और तरक्की की तरफ रास्ता गामजन रहे, चाहे इल्म के मैदान में हो, चाहे सियासी मैदान में हो, माशरती एतबार से हो, हर जगह हर तरफ से चारों तरफ से उनकी तरक्की हो। और यही हम कामना करते हैं और हम अपने देशवासियों को, अपने इलाके वालों को यही पैगाम देना चाहते हैं। और एक सवाल है कि हमारे बिहार में खास करके पढ़ाई के मैदान में लोग बहुत पीछे हैं और इसकी संख्या बहुत ही कम है, तो ऐसा क्या लाही अमल तैयार करेंगे कि लोग बच्चे पढ़ाई के मैदान में आगे आए और गार्जियन भी उस पर इंटरेस्ट दिखाए, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी भी एक देरीना तमन्ना है कि आप हमारे इलाके से या हमारे जो इतना बड़ा जो इलाका है मुसलमानों का है या जो गैर मुस्लिम जो भी इलाके में, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर घर में 100% एजुकेशन हो। और जो हम लोग की सोच है कि जिससे 5 बच्चे हैं, अभी जो मौलाना बता रहे थे कि 5 बच्चे हैं तो 5 लाइन में जाना चाहिए, तो कुछ लोग करते ये है कि 1-2 लोगों को पढ़ाते, बाकी लोग को फिर जो है रोज़गार के लिए बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ये इल्म है, जो उसमें बुनियादी हक़ है इंसान का, जो तो हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उसे कम से कम इस लायक उसको इल्म हासिल करवाएं, ताकि वो दुनिया में सुरखरू हो सके और दुनिया में दूसरों के साथ साथ कदम ब कदम वो बढ़ा सके। रही बात है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो ये जो है इल्म, हम जैसे पुराने ज़माने में लोग जो है स्कूल कॉलेज के तालीम को लोग बुरा समझते थे, तो बल्कि अब जो लोग कहते हैं कि इल्म उसकी बुनियाद पे नहीं है, कोई दीनी है या दुनियावी है, बल्कि इल्म नासे है या गैर नासे है, जो हमें फ़ायदा पहुँचाएगा वो इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर के मैदान में हो, चाहे इंजीनियरिंग के मैदान में हो, चाहे और सियासी मैदान में हो, बल्कि वो इल्म हासिल करना चाहिए। और तमाम फील्ड में हम लोगों को उसकी ज़रूरत है और उसमें हमारे लोगों को बढ़ाना चाहिए। और इस फील्ड में खुसूसन इल्म के मैदान में अगर हमसे कभी भी किसी तरह की भी कोई अगर मदद की ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह हम उस वक्त भी आगे रहेंगे। और हमारे इलाके के जो नौजवान हैं, इसकी इस्लाह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवान जो किसी भी कौम का जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। हमारे नौजवान अगर सुधर जाएंगे, हमारे नौजवान अगर और सही रास्ते पे चलना लगेंगे, बुराइयों से बचेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे, और तो वही कौम जो तरक्की करेगा। और हमारे नौजवानों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इल्म के मैदान में रात दिन मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सिवाय मेहनत के, सिवाय जद्दोजहद के कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप कोई भी चीज़ इस इल्म के मैदान में कोई शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है तो जद्दोजहद करना है, खून पसीना एक करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास तो उतने वसाइल हैं ना, आपका कोई सियासी उतना कोई आपका अप्रोच है कि आपको जो बिना पढ़े बिना कुछ किए आपको कोई नौकरी मिल जाएगी या आपको तरक्की मिल जाएगी, नहीं, बल्कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि मेहनत और मुशक्क़त करके और अल्लाह पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको फिर से दिल की गहराई से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आगे चलते हैं हमारे खास मेहमान मास्टर अबूज़र साहब से। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप बहुत दूर सफ़र करके हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ऐसे दूर से आने का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि यहाँ जमात बड़ी होती है और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अपने लोगों की कमी है, और वहाँ जाके बसने के बाद नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तो ये खुशी वहाँ हासिल नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों के बीच जाकर के इस खुशी को और दोबारा करूँ। अपने बाल बच्चे के साथ ईद के मौके से हर साल आया करता हूँ। अब रहा सवाल इस इलाके में जो भाईचारगी और अमन कायम करने के लिए इमाम साहब की तरफ से या डॉक्टर साहब की तरफ से जो कुछ बोला गया, ये 100% अमल होना चाहिए। और मुझे इस रमज़ान के बाद का जो ये ईद, जिसको खुशी का मैंने मीठा ईद कहा जाता है, बहुत ही मैंने अच्छा लगा, और इस मैदान में तो खुशी का कोई हद ही नहीं रहा। आप जो है तालीमी मैदान में एक अच्छी खासी उम्र वक्फ करते हैं और अभी भी माशाल्लाह इस मैदान में है, और हमारे इलाके का जो हालत है तालीमी मैदान में वो बहुत ही गिरावट है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इस पर आप क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही होगा कि आप जो भी गार्जियन अपने बच्चे को आगे ज़िंदगी में एक अच्छा ज़िंदगी गुजारने वाला बनाना चाहते हैं, तो आप आधी रोटी खाएं, खाना में से या कपड़े में से जो भी आपका अखराजात हैं उसका 50% आप अपने ऊपर खर्च करें, बाकी बच्चों की तालीम पर खर्च करें। और जब बच्चे आपके सुधर जाएंगे, आगे नस्ल खुद ब खुद सुधरेगा। तालीम से बढ़ के इस दुनिया में कोई बड़ा हथियार नहीं है, कलम से बढ़ के कोई बड़ा हथियार नहीं है। जो कलम चलाने वाला हो जाएगा, दुनिया उसके पीछे खुद ब खुद आ जाएगी और इनका तरक्की कोई नहीं रोक सकता। इस कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी तालीम के मैदान में आगे बढ़ना। और मैं चूँकि इस क्षेत्र में नौकरी मेरा लगभग 30-35 साल हो गया, और मेरे जो भी बच्चे हैं डॉक्टर साहब के साथ कुछ नसीहत हासिल करते हुए मैं अपने सारे बच्चों को, जो भी पैसा मैं उठाता हूँ, दोनों आदमी हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे हमारे कहीं ना कहीं अच्छे इदारे में पढ़ते हैं। तो कोशिश सभी गार्जियन को करना चाहिए कि अपने हिसाब से जितनी औकात है, उस औकात कमाई में से 50% अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करे, ताकि इस कौम की भलाई आगे हो सके। तो इस पुरवकार मौके पे आपका कोई खास पैगाम? मेरा पैगाम यही भाईचारगी, जिस देश में हम रहते हैं ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। हम जहाँ भी रहें, हमारे अड़ोस पड़ोस जिस बिरादरी के भी लोग हों, हदीस में भी है कि वो आदमी तब तक कामयाब नहीं हो सकता इस्लाम के हिसाब से जिसके पड़ोसी उससे खुश ना हो। तो हम जिस देश में हैं, हमारे पड़ोसी में चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हम उनके साथ भाईचारगी का पैगाम देते रहें। जो दूसरे आदमी जो बात को नहीं समझते उसको भी समझाएं, ताकि देश में अमन और चैन बना रहे, और हमारा तरक्की अमन और चैन ही में है, लड़ाई झगड़ा और फसाद में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको फिर से दिल की गहराई से ईद मुबारक। जी आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जमालुल्लाह नदवी साहब से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इस पुरवकार मौके पे हम नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको दिल की गहराई से ईद मुबारक। आपको भी और आपके तमाम साथियों को भी और तमाम मुसल्लियान को भी, तो और इसी बनिस्बत से तमाम बिरादरान वतन को भी, सबको भी। तो इस पुरवकार मौके पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ास करके हमारे टापू एरिया के जो लोग हैं, इसको आप क्या खास पैगाम देना चाहते हैं? इस मौके से ख़ास पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जिस प्रैक्टिकली ज़िंदगी को अभी नाफिज किया है और अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी की, यानी हलाल चीज़ पे भी हाथ नहीं लगाया। क्यों कि अल्लाह ताला ने मना किया है, इसलिए वही अल्लाह ताला आम दिनों में जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से दूर रहे, उन चीज़ों में हाथ ना लगाए। ख़ासतौर से मैं नौजवानों से कोई ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म की वजह से आपने रोज़े की हालत में प्यास लगने के बावजूद अगर पानी नहीं पिया है, भूख लगने के बावजूद भी अगर खाना नहीं खाया है, तो वही अल्लाह आम दिनों में जुआ, शराब, मनशियात की जितनी भी चीज़ों को हराम किया है, उसको हराम समझे और उससे हाथ ना लगाए। ख़ासतौर से जो अभी उमूम बलवा है, लोग उसमें मुलविस होते जा रहे हैं, उन चीज़ों से दूर रहें। हमारे इलाके में जो बुराइयां फैल रही है समाज में और नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस पर हमें और आपको क्या लाही अमल तैयार करना पड़ेगा कि जो बच्चे बुराइयों में फैले हुए हैं, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में लोग बुराइयों में मुब्तला, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक आम परेशानी सी हो गई है, लायक हो गई है। अगर हम कहें कि तालीम से जुड़िए तो ये बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी,
तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मैदान में इलाका बहुत आगे बढ़ रहा है, डेवलप किया है। तो सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत का पहलू भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। हम तालीम पे तो जोर दे रहे हैं लेकिन तरबियत पे जोर नहीं दे रहे, और तरबियत से हमारा गांव, समाज, माशरा, हमारी इदारे भी खाली होते जा रहे हैं। हमारे इदारे में जो बच्चे आते हैं हम उनको तालीम देने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की चीज़ें सिखाने का जज्बा हमारे अंदर होता है, लेकिन एक तरबियती पहलू जो है ना नहीं होता। बड़ों का अदब, छोटे से प्यार, बड़े पढ़े लिखे लोगों से क्या रब्त ज़ब्त होना चाहिए, माँ बाप के साथ क्या रब्त ज़ब्त होना चाहिए, हमारे खड़े होने, उठने, बैठने, चलने फिरने का क्या अंदाज होना चाहिए, इन चीज़ों को हमारे तालीमी इदारों में बड़ी कमी महसूस होती है। अगर हमारे ये इदारे जिस तरह से तालीम पे जोर दिए हैं, अगर तरबियती पहलू को भी अगर अपना ले तो इंशाअल्लाह इसकी कंट्रोल पाएगा। हमारे सोसाइटी में जो बात देखी जाती है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जाएंगे इंशाअल्लाह, उनको प्रेरित करने की ज़रूरत है, उनके हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, और जो पहले बिल्कुल नहीं जाते थे उसके बनिस्बत अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन लग चुकी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है कि हमारे इलाके में अभी डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, मास्टर की, हाई एजुकेशन का एक जोश और जज्बा जो है ना बेदार हुआ है और लोग आए। अभी जो है ना सैकड़ों की तादाद में हमारे इलाके में इंशाअल्लाह बीटेक और एमटेक मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बरसर रोज़गार आ चुके हैं और बहुत सारे लोग उसकी तलाश में है, कोशिश में है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। हमारी बिहार सरकार ने भी इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, और ये नहीं है कि किसको नौकरी देना है, किसको नहीं देना है, बल्कि हमारी सरकार ने जो कुछ रूल रेगुलेशन अपनाया है बस वही यही है कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो, एबिलिटी हो, आप इंशाअल्लाह उस मैदान में सेलेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरत है हमारे नौजवानों को कि अपने आप को कोई एबल बनाए और अपने अंदर वो सलाहियत, वो मादा, वो क़ुव्वत पैदा करे, इंशाअल्लाह वो सेलेक्ट हो सकते हैं। ईद का दिन बहुत सुनहरा दिन होता है, जी, इस मौके पर हम जैसे नौजवानों को आप क्या खास पैगाम देना चाहेंगे? हम नौजवानों को पैगाम यही देना चाहेंगे कि नौजवान समाज और माशरे की रीढ़ की हड्डी के लिए, अगर हमारे ये नौजवान अगर सुधर गए, सही रास्ते पे आ गए, पूरा समाज अपनी जगह पे आ जाए। और ये नौजवान अगर हमारे बेराह रवी के शिकार हो तो फिर इसको समाज को, माशरे को कंट्रोल कौन करे? हमारे मस्जिद को कंट्रोल यही नौजवान करते हैं, हमारे तालीमी इदारे को यही नौजवान करते हैं। जो भी रिफाही काम होता है इन्हीं नौजवानों की बदौलत ही कराया जा सकता है और करते हैं। तो हमारे ये नौजवान को सालेह नौजवान बनना, ये अगर ठान ले तो इंशाअल्लाह गांव में, समाज में, मुल्क व मिल्लत में चारों तरफ अमन और शांति होगी, खुशी होगी। 2 साल पहले की बात है कि यहाँ पे न कब्रिस्तान था न ईदगाह था, लेकिन इतनी कम मुद्दत में इस तरह का इंतजाम हो जाना, इसके पीछे क्या रीजन है? अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है सबसे बड़ी चीज़। दूसरे नंबर पे इस दायरे में आने वाले लोगों के इखलास सबसे बड़ी चीज़ है कि इखलास, कि जो काम भी हम करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, और नेक नियति लेकर के चंद ही लोग उठे थे, और उनके नेक नियति का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया कि सारे लोगों को एक जगह कर दिया, एक सोच और एक जुबान कर दिया, और एक सोच एक जुबान होने ही की वजह से चंद ही दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी दौलत हम लोगों को अता कर दी। कब्रिस्तान की शक्ल में हो, चाहे ईदगाह की शक्ल में हो, और सिर्फ कब्रिस्तान और ईदगाह का दायरा यही नहीं है बल्कि इसका दायरा और भी बहुत दूर तक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये अभी मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है। अल्लाह तबारक। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको फिर से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आप चलते हैं, आपके पूरे साथियों को। अब चलते हैं हमारे नौजवानों की तरफ, उनसे भी जायजा लेते हैं। उम्मीद है बखैर होंगे। आपको दिल की गहराई से ईद मुबारक। हमारे नौजवान जो उभरता हुआ चेहरा है हमारे सुपौल बिहार का, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि वो ईद कैसे मना रहे हैं। तो आपसे सवाल ये है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी ईद के मौके पे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने रमजान के महीने में 30 दिन का रोजा रखा
और फिर अब आज ईद मैसर हुआ हमें और हमें बहुत खुशी हो रही है। बचपन की जो ईद होती थी और आज का जो ईद है उस पर आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? बचपन की ईद और अभी के ईद में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, क्योंकि बचपन में कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होता था और बहुत खुशी से ईद मनाते थे। लेकिन अभी एक है, अपनी जिम्मेदारी सारी चीज़ को देखते हुए, जिम्मेदारी को निभाते हुए भी हम खुशी मना रहे हैं। और आपसे एक सवाल है कि आज का जो समाज है इसमें बच्चे पढ़ाई के मैदान में बहुत पीछे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी इसमें राय है कि जो बच्चे पढ़ाई के मैदान में पीछे जा रहे हैं, इसमें हम गार्जियन के भी बहुत हद तक कमी है कि हम गार्जियन इस पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं, और जो हमारे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई को छोड़कर बहुत दूर दूर दिल्ली, पंजाब, जयपुर वगैरह चले जाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना होगा और हमारे बच्चे क्यों इसमें जा रहे हैं इस चीज़ पर हमें गौर करना होगा। इस पुरवकार मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी के लिए? हमारी सोसाइटी के लिए हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने आज एक खुले मैदान में आकर एकजुट होकर हमने ईद की नमाज अदा की, उसी तरीके से हम हर फील्ड में, हर माहौल में, चाहे एजुकेशन में हो, अपने सोसाइटी में हो, हर माहौल में हम एकजुट होकर एकता ला करके हम सारे काम को करें, चाहे एजुकेशन मामले में हो, चाहे हमारे लिए गांव के किसी भी, चाहे हमारे घर की ही हमें जिम्मेदारी है, उस सब को लेकर मिलजुल कर हमें चलना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से दिल की गहराई से ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अब आगे चलते हैं। आपको दिल की गहराई से ईद मुबारक। आपको भी दिल की गहराई से। आप जो ये चेहरा देख रहे हैं नौजवानों में बहुत उभरता हुआ चेहरा है हमारे सोसाइटी का, तो इससे हम बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पुरवकार मौके पे? ईद जो है खुशियों का त्योहार है, और ईद जो है पूरे देश में अमन शांति का पैगाम देता है। इसलिए ईद के मौके पर तमाम देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, और तमाम देशवासियों को एकता का, एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है ईद। बस यही है, खुशियों का त्यौहार है। और बचपन में और अभी का ईद में बहुत अंतर है। उस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ पाई जाती थी, अब तो ईद में उस तरह का ये नहीं पाया जाता है। फिर भी ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, इसलिए हम लोग ईद के मौके पर पूरे देशवासियों को अमन और शांति से रहने का पैगाम देता है। बस दिल की गहराइयों से ईद का। तो इस पुरवकार मौके पे हमारे सोसाइटी के लिए कोई खास पैगाम है आपके पास? खास यही पैगाम है कि हमारे कौम को जो है तालीम के इसमें ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, और तालीम के मामले में हम लोग कौम बहुत पीछे है, तो इसलिए तालीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको फिर से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। चलिए, आपको अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो हम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। और फिर से आप तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।